श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो ब्रूस, आज एक बार फिर से एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ आपके सम्मुख स्टूडियो में प्रस्तुत हूँ जिनको अपने स्टूडियो में लाने के लिए मैं बहुत देर से मुंतज़िर था। साथियों, मैंने अक्सर आपसे कहा कि हमारी ये कोशिश रहती है कि जीवन के जितने भी विभिन्न क्षेत्र हैं उनके जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको हम आपके सम्मुख लाएं, ताकि हमारा रेडियो बूस का जो लक्ष्य है, कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उसको हम पूरा कर सकें। आज हमारे बीच श्री शशिकांत आनंद, जो कि बचपन से मेरे मित्र भी हैं, स्कूलमेट हैं, कॉलेजमेट हैं, आज वो हमारे यहाँ आना उसके लिए राजी हुए हैं। और दिस जेंटलमैन इज ए सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर of the art of science of neuro-linguistic programming as well. तो आज हम इनसे इनके महारत का जो क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और पता करेंगे कि किस तरह से ये अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे श्रोताओं के हित में, अवेयरनेस में बातचीत करते हैं। शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं खैर मकदम करता हूँ। तो हम आपसे पहले आपके करियर के बारे में दो शब्द सुनना चाहेंगे, ताकि हमारे श्रोता इस बात को समझ पाएं कि आप किस बैकग्राउंड से इस सारी बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं। शशि जी। Thank you, Mukesh, for inviting me. Now, friends, as far as my profile is concerned, I started training from 1995. But then at that time, the curiosity was that which are the areas where I can have excellence. When I say excellence, world over excellence. So in those days, one of the programs which was very prevalent was this NLP, Neuro-Linguistic Programming. Yes. And I had read about it, and I was very keen to exactly know as to how does it help a person in his business, in his personal growth, and in his success, even in day-to-day life. So I came to know that this is a pseudoscience which was discovered by two Americans. One was John Grinder, who is the linguistic and author also, and also Richard Bandler, who was a mathematician, who is still a mathematician, computer expert, and an author and a speaker. Now they first time they told and showed the world that NLP is the difference that can make a lot of difference in your business, in your personal life. Then obviously the question is that what is this NLP? So NLP, as you said, is neuro. Neuro stands for the brain. Yeah. Linguistic is the language. Yes. And programming is the plan. Yeah. So in other words, what is the effect of language on the brain? Now we listen to a lot of things, and everybody has his own way of taking the inputs from the happening that is going around. Right. He takes the input, then he processes and then responds to that. Now, these people found that this is a very unique phenomena of everyone. No two people, Yes. take the input in the same way, process in the same way, and respond in the same way. Yeah. So he felt interested, rather they felt interested, can we know as to what it is exactly like? And they found that
for the success of anyone, Mukesh, you know it better than me, what a person needs is communication skills. Yes, yes, yes. Because one of the very important skills on Yeah. the call is the communication skill. Yes, yes. But communication skill means unless it is an effective communication, it doesn't work. Yes. So the first thing they came out with was effective communication makes it happen. Yes. Okay, and then they defined communication. Okay. Now, in their paradigm, is communication is the response you get. Simple as that. Means if you are able to get the desired response, you have been able to communicate. Yeah. If you don't get it, the fault is not the other person. Yes. That means you have not been able to convince him or speak in a language that he can understand. Yes. Yes. So further when they went, they saw that actually what is this communication made up of actually? Mm-hmm. Is it only the words? Yeah. Or there is something known as body language and something known as the tone and pitch of the voice. Yes. So they thought three things: words, physiology, that is the body language, and the tone and the pace. Okay. And if it is all total 100, Right. Mukesh, what do you think? Just a guess. What should be the role of words that we give so much emphasis to? Out of 100, what do you think should be? I think not less than 80 to 90%. Oh, that's what people used to think. Yeah. 80 to 90% Yeah. is the role of the words when we speak. And if it is 80 to 90%, where would you put the body language? You know, in fact, in totality, the eloquency and the impression of your language, put together your body language and pronunciation plus words, of course it comes to 100% in totality. But though it is very difficult that what percent is affecting in words, what percentage is affecting in language and body language. So it is a cumulative effect which creates Fair the enough. total impression. Fair enough. Fair enough. Now, this is the general belief. I mean, you're absolutely Yeah. right. This is what people think and believe. Yeah. Now, you will be surprised. The role of words is just about 7%. Is it? Yes. That's very interesting about it. Huh. They said that 7% is the role of the words that Okay. we, so eloquently and all that speak. Okay. And 38% is the tone, Okay. the pitch. Yes. And 55% Ah. is the body language. Okay. Okay. Now, to give you the example of tone, Huh. you remember when we were children, Ah. बाहर कंचे खेलते थे, Right. और माँ ने खाना लगाया उधर. Right. So she would say, Ramu, खाना लग गया. Ah. And Ramu is not bothered. He Yeah. still, goes on Yeah. playing the kancha. And the second voice will come, Ramu, Ah. still this guy is not moved. Yes. And the third voice is, Ramu, Ah. and this guy Right. Right. runs, Right. Right. So what did I do? The word is the same. Yeah. But the change of the tone and the pitch Yeah. makes all the difference. Different. Shashiji, मुझे I am reminded of there is a scholar in Hindi language, Vatsayan Agge. He used to say कि शब्द अधूरे हैं, उनका उच्चारण उनको पूरा करता है. ठीक बात. तो ये बात जो आप कह रहे हैं, डेफिनेटली शब्द अधूरे रहते हैं, उनका उच्चारण, उनकी टोन, दैट रियली मेक्स देम कंप्लीट. Good. Very good. That's very good. Yes. एक और बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कम्युनिकेशन में मुकेश जी, कि कम्युनिकेशन में 95% is the preparation of the audience Yes. and just 5% is the content. ठीक. So एक बार अगर आपका नाता ऑडियंस से जुड़ जाता है, Right. या जिसे हम रेपो कहते हैं Yeah. इंग्लिश में, घनिष्ठता जिसको कह लें या सौहार्द या कांटेक्ट, Yeah. एक बार जब आपका जुड़ जाता है
और जब आपको लगता है कि अब मेरी ऑडियंस जो है इस रिसेप्टिव मूड में आ गई है, yes. तो फिर आप हाथ से उनको चने खिला लीजिए, फिर वो Exactly. आप सारी बात मान लेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर वो तैयार नहीं है, Yes. then whatever you do, and you'll be surprised to know, Mukesh, the different reaction that people give to the same thing. Yes. You give a very motivational story. One guy is transfixed. The other is bored to the tears. ठीक. You tell a very interesting joke. Right. You know, one person is howling with laughter, the other doesn't move a muscle. Yeah. Yeah. So you feel that, am I talking in a different mental language or what is it? Right. But that means these two people have a different way of, understanding accepting the things, understanding the things. Then they saw another thing, that why is it that one person sees the glass empty and the other sees the glass full? Yeah, it's a question of attitude. Why is it that you give a very inspiring, motivational story, one person is very excited, exhilarated, and the other person feels badnauseous? Yes, yes. Then Bernard Shaw said one very interesting thing. He says, if you talk to a person in the right key, Okay. you can talk and talk, he's all yours. Right. But if you talk to him in a wrong key, he Yeah. won't understand anything, whatever you say. Right. You may be very impressive in talk, you may be giving a very valid critique, but if the guy is not understood, it falls on a flat ear, Yeah. So, what they said, okay, first of all, let us build the repo. Acha, why I'm saying repo again and again? Because we are forgetting the physiology part, Right. which is as much as 55%. Okay. So how do we make use of that to make an effective communication? Now, for repo, how do we build repo? Repo banane ke liye, we try to become the same as the other person. Yes. Means, like I'm sitting with you. Right. If I have to build rapport with you, Yes. your hands are like this, Right. and I'm also putting my hand like Yeah. this. Yeah. Your neck is tilted. I'm also tilting. So what I'm trying to do is I'm Right. trying to mirror you. Yes. Yes. Okay. So there is one very beautiful sentence which they said: when people look alike, they think alike, and you like people who are like you. Right. So that is why they said, before talking to any gentleman, if I am conscious enough to just mirror him, Right. I am not trying to ape you, mind you. It's a Right. very delicate and very subtle way Yeah. by which I am doing it. Right. For example, if you do like this, I need not do like this. Right. Just this is enough. Right. Right. आपने बार में देखा होगा जब दो आदमी 3-4 पैग ले चुके होते हैं, Yes. अगर आप दूर से उनको देखें तो दे लुक दी कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर. Each other. Yes. वो एक ही टाइम पे गिलास उठाएंगे, Right. एक ही टाइम पे चखना खाएंगे. Yes. Why is it happening like this? हाँ. Because both of them are alike in their posture. Right. Right. And that is why they are thinking also alike, Yes. and their talks go on. They become king alike. Yes, king alike. Yes. That's right. Now, another thing is matching. Yeah. Now, when it comes to matching, what do I do? If you speak fast, can I speak slow? No. I have to match that. Yeah. So, in matching, we try to match the tone of the other person, Yes. the pitch at Pitch which as well. he is speaking. If he's a fast speaker, Right. I also try to be fast. Right. But if he's a slow speaker, I also try to be Right. slow speaker. Now, to further go into the detail of this tone business, they came out with a representation of each person which is different. Sensory representation. We know we have the 5 senses. We see, we hear, we feel. Yes. Then the taste part there, gustatory, and smell. Right. So what they found that generally
three kinds of visual representation are shown by people. One is the visual. Now these people take the input from the world around by visual words, like bright, I see, it appears to me. उनकी शब्दावली जो है वो इस टाइप की होगी. I'm going to give my audience the various words, Yeah. simple words which they speak. Yes. So because they are taking all the information through visual senses, they process it and then they speak the same language. Yes. तो अगर आपको ये पता लग जाए ऑब्जर्वेशन और फ्लेक्सिबिलिटी से कि ये शख्स द विजुअल है, एंड इफ यू स्पीक द सेम सेंटेंसेस विद a word or two which he likes, Right. then you are likely to build very soon rapport. Right. And once the rapport is built, then you can carry on. Yes. Now the other people are the auditory ones. They process the thing by listening to words. Right. And which type of words? It sounds great to me. It rings bell ठीक. to me. That's loud and clear to me. Yeah. उसकी लैंग्वेज ये हो जाएगी उसी चीज के लिए. वो किनेस्थेटिक लोग जो हैं ये बड़े फीली और टची हैं. Yes. They will use the word, I feel it is correct. Yes. I get the handle on it. Right. Hold on. Right. And these are the people who always would like to touch something or the other. I am myself a kinesthetic person, so mostly you'll find I've kept the pen here. Right. Because I feel like touching. Yeah. That's how I am. So they found that these three types of representation, the sensory representation which are there, if we can understand by observing them that what kind of a preference he has, and if I use the same word that he likes to hear, then I build a very quick rapport. Right. And as I said, people like people who are like them. And once the rapport is built, then you can get through this man immediately. Right. Now I tell you where the problem comes. Now, for example, my wife is visual, and I am kinesthetic. अब kinesthetic आदमी का क्या काम है? वो hug करेगा, kiss करेगा, like touching. Yeah. And visual people wants to see love. Okay. वो चाहेगी कि वो गजरा कहाँ है, वो फूल कहाँ है, वो साड़ी कहाँ है, Right. वो गिफ्ट तो लाओ. Right. आप जाके जो है उसको हक करेंगे, उसने आपको पता Yeah. चलेगा. Yeah. Because and you feel यार I am trying to sincerely love her, और वो झड़क देती. Right. But you do not know कि उसका जो preferred representation है Right. वो visual है. Yes. She wants to see love. Yes. और आप जो हैं इसी तरह से जो ऑडिटरी अगर मान लीजिए वाइफ है और आप किनेस्थेटिक हैं, आप तो वही करेंगे ना. वो सुनना चाहती है रोमांटिक वर्ड्स, Right. है ना, Yes. कि भाई आज ऑफिस में भी बात हो रही थी कुछ वाइफ्स के उस पे, तो तुम्हारा जिक्र आया तो मैंने तो कहा भाई मेरी वाइफ जैसा आपको कोई मिलेगा नहीं, Matchless. मैचलेस है और उसका जो व्यवहार है दिस एंड दैट, शी विल बी वेरी हैप्पी. Right. ठीक है. सो अनदर थिंग व्हेन वी सेड इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेक्स इट हैपन, Right. नाउ वी आर ट्राइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. Right. So in sensory preferences, the visual, the auditory, and the kinesthetic. Right. We will give you the words Yes. later on, Yeah. and so that you can just make use of them while you are in talking to them. Now, Right. one more thing about it, ये जो visual लोग हैं, इनको सब दिखता है, हाँ. because their input source is visual. Yes. और जो ऑडिटरी है वो साउंड से, यूजुअली यू विल फाइंड ऑल फोटोग्राफर्स, आई डोंट नो संकल्प, दे विल बी विजुअल, ठीक. एंड ऑल म्यूजिक डायरेक्टर्स दे विल बी ऑडिटरी ऑब्वियसली. Yeah. और ये एक्टर जो हैं ये किनेस्थेटिक बड़े होंगे, दे फील एंड लिव द कैरेक्टर. अब इसमें अगर आप गड़बड़ करते हैं देन द रेपो इज मतलब मिक्स मैच नहीं चलता. चलेगा. ठीक है. कोशिश करें. मैं शशि जी आपसे एक और बात साझा करना चाहूँगा जिसके आप भी मालिक हैं. देखिए, आपने बहुत से ऐसे तरीके बताए जहां आप अपने लाइफ पार्टनर को रिझा सकते हैं
और जब तक आप उनके मनपसंद तरीके को नहीं फॉलो करते, आई एम रिमाइंडेड ऑफ जब मेरी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मेरे बच्चे मुझसे कहने लगे, पापा आप मम्मी के लिए क्या लेके आए हैं? मैंने कहा मैं उसी समय बताऊंगा जब हम केक काटें। तो केक कट गया, बच्चों ने पूरी भरी सभा में इस बात को अनाउंस किया कि हमारे पापा 25वीं मैरिज एनिवर्सरी पे कुछ खास गिफ्ट देने जा रहे हैं, नाउ वी रिक्वेस्ट हिम कि भाई वो गिफ्ट सामने लाएं। मैंने सबको कहा भाई आप शांत हो जाओ, मैंने अपनी बेगम के लिए 2 अशार लिखे हैं जो मैं पब्लिकली पढ़ना चाहता हूँ। ऑडिटरी, see, look at the auditory guy here. तो उनमें एक शेर मुझे अब भी याद है कि गजल नहीं तुम मेरी रुबाई भी हो। क्या बात। गजल नहीं तुम मेरी रुबाई भी हो और धीरे से दिल में समाई भी हो। खुशी की बात नहीं करता, खुशी की बात नहीं करता, हर दौरे गम में आजमाई भी हो, हर दौरे गम में आजमाई भी हो। तो मुझे आज तक जब तक वो रही, उन्होंने उसके कॉम्प्लीमेंट्स मुझे आखिर तक दिए कि वो सबसे बड़ा अवार्ड था जो आपने मुझे दिया था। Okay, she must be auditory. Yeah. She must be so the auditory. point is this: I am endorsing your viewpoint. Absolutely. It is not the jewelry which matters or diamond which matters. It is at times the words are much more precious to an auditory. Yes. अब आप देखिए साहब कि अगर इसमें आप चेंज करके देखें कभी, and then you see the difference. Yes. You see the difference what happens. हाँ. अब जो आदमी ऑडिटरी है वो बोलना चाहता है, like you are an auditory person, you love to talk. Right. बहुत प्यार से, आप जल्दी नहीं करते, आप बड़े इत्मीनान से अपने शेर को पढ़ेंगे, गजल को पढ़ेंगे, because you love to talk. You know that is the nature of the auditory person. Right. लेकिन आपके पास अगर कोई विजुअल बैठा है, हाँ. तो वो कहेगा अरे भाई जल्दी कर यार तू तो Exactly. You know, this is how it is. तो ये जरा देखना पड़ेगा कि भाई ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। अब आप देखिए किनेस्थेटिक्स का क्या है, वो बीच बीच में पॉज लेते हैं। फेमस एग्जांपल वाज अटल बिहारी वाजपेयी। तो वो बोलते थे तो बीच में लोगों को लगता था शायद खत्म हो गया, वो ताली बजाने लगते थे, वो शुरू हो जाते। तो उनका नेचर ये रहता है कि वो बड़े आराम से और पॉज ले लेके बोलते हैं। सो आई रिपीट, विजुअल्स बिकॉज दे आर सीइंग व्हाटएवर इज हैपनिंग, दे स्पीक वेरी फास्ट। यहाँ से वो उनकी ब्रीदिंग तेज रहती है और फट 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 वो बोलते हैं। ऑडिटरी लोग डायफ्राम से बोलते हैं और वो बड़े आराम से रिदमिक तरीके से वो बातचीत करेंगे। और जो किनेस्थेटिक हैं वो फीलिंग, बिकॉज दे हैव टू फील एंड स्पीक, दैट इज व्हाई दे गिव पॉजेस एंड डू इट। सो जब आप किसी दूसरे से बात करें और अगर आपको ये NLP की प्रैक्टिस है और आप इसके बारे में जानते हैं तो आप बहुत जल्दी उससे रेपो बना लेंगे। शशि जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत मुद्दत से इस एरिया में काम भी कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि क्या आफ्टर हैविंग, ऑफ कोर्स योर interpretations are very, very bright and they are revealing so many things. But at the end, after hearing all these words and when you come to yourself, जब आप अपने पे आ जाते हैं तो ये differences मैटर करते हैं। मैं ये समझता हूँ इन सब चीज़ों को समझने के बाद और उन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के बाद जब आप इन ट्रू सेंस बतौर शशिकांत अपीयर होते हैं या आपकी पर्सनैलिटी टोटलिटी में सामने आती है, उस समय ये सब चीज़ें। अच्छा सवाल है मुकेश, देखिए मुझे अपने आप को नहीं बदलना है। मैं जैसा हूँ सो हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि ये साहब जिसके साथ मुझे बातचीत करनी है, संबंध बनाने हैं, क्योंकि मुकेश किसी भी क्षेत्र में
एक व्यक्ति ऐसा होता है जो आप जानते हो कि अगर इससे मेरे संबंध हो जाएं हाँ। तो ये मेरी सक्सेस को बहुत जल्दी बहुत इजी तरीके से कर सकता है। यस, तो फिर क्या आप उसके साथ वो संबंध बना पाए हैं? अगर नहीं बना पाए तो कोशिश करोगे। यस, ये जब आपको संबंध बनाने हैं तब ये आपकी बहुत मदद करेगी। Yes. मैं आपको एक अपना एग्जांपल देता हूँ। हाँ, मेरी एमडी थी डोमिनिक करके, शी Okay. वाज बेल्जियम से थी, वो पहले इटली में थी। तो मैं एक कोर्स करके आया था पेरिस से, 6 थिंकिंग हैट्स। ओके, तो ये इंटरनेशनल कोर्सेज की मुकेश जी बड़ी कीमत है, 4.5 लाख फीस थी और पैसा दे लगा के 8-9 लाख से कम वो पड़ता नहीं। ओके, अब वो मैं करके आया, एडवर्ड डिबोनो साहब हैं जिनका मैं बहुत फैन था। तो उनका प्रोग्राम में अटेंड करके आया और विद इन 9 or 10 मंथ्स एडवर्ड डिबोनो साहब एक और अपना प्रोग्राम लेके आ गए, 6 वैल्यू मेडल, विच ही वाज हिमसेल्फ गोइंग टू कंडक्ट ओके, इन ब्रसल्स। आई वॉज वेरी कीन। मैंने कहा यार उनकी एज भी हो गई है, ही वॉज लेट 70s, आगे वो शायद बनाए ना बनाए तो ये अरमान ना रह जाए दिल में। लेकिन अंदर से ये रिजर्वेशन थी कि यार अभी एक लेडी कहेगी यार अभी इसका तो पिछला बिल नहीं दिया है। अच्छा। और ये फिर डिमांड लेके आ गया। तो आई सेड आज मैं जितना कुछ NLP पे सीखा है, लेट मी सी वेदर इट वर्क्स। यस, प्रैक्टिकली वर्किंग में कितना का आता है। सो बिल्कुल बिलीव मी मुकेश जी कि जाके इधर उधर की बातें करके मिररिंग मैचिंग, एंड आई नो शी इज अ विजुअल, तो उस तरह से बातचीत कर, शी वाज विजुअल फॉलोड बाय द ऑडिटरी। माइंड यू, लेट मी टेल यू, ये होते तीनों सब में है लेकिन डोमिनेंस हाँ, क्या होता है, ठीक है। तो बातचीत करते करते जिक्र आया तो मैंने उनको बताया कि ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम है और एडवर्ड डिबोनो खुद कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, इसका ये एडवांटेज होगा। कहने लगी बट यू हैव ओनली इन अबाउट 12 months टू रिटायर। यार so I said yes ma'am, but 12 months is good enough. And let me assure you, if I am able to do this with your kind permission, I would give it to all the managers, retired or not retired. Okay. I would certainly ensure that I do it to all the managers so that they are benefited. यस, I think now there is a direct flight to Brussels, I'm told. I said, this is a very positive sentence. I said, yes, ma'am, there is a direct flight to Brussels. So you talk to the accounts and speak back to me. I said, wow. I mean, believe me, Mukesh, I was the happiest person. One, because I was getting to do that program. Okay. Secondly, NLP works. ओके, यस, So that's what I'm telling you. It does of work. course. I didn't change myself, Yeah. but I just went as per her preferences. यस, एक और तीसरी चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो जब आप कर लेंगे तो आप दूसरे आदमी का पूरा एक्सेल निकाल सकते हैं। यस, यस, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की जरूरत है और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। यस, ये तीसरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो है मेटा प्रोग्राम्स, जिसे कहते हैं। ओके, नाउ मेटा प्रोग्राम्स आर एक्चुअली कीज, like Bernard Shaw said कि in the right key you can talk to anybody, but in the wrong key you can't talk. यस, और मेटा प्रोग्राम्स आर लाइक दिस सॉफ्टवेयर। आपके अपने बॉडी का जैसे कंप्यूटर का होता है, वैसा ये मेटा प्रोग्राम जो 6 है जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, ये आपका सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ये आपके अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और जो भी इनपुट आप लेते हो उसको प्रोसेस करते हो और रिस्पॉन्ड करते हो, वो इस स्ट्रक्चर के अनुसार होता है। ओके, मतलब इस स्ट्रक्चर के अनुसार ही आप चीज़ों को रिसीव करेंगे, डिलीट करेंगे, प्रोसेस करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब। और जब आप ये सुन लेंगे तो उसके बाद आप अपने लोगों में ऑब्जर्व करिए, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। शायद पहले कभी ध्यान नहीं दिया, Right. अब आप इसको कॉन्शियसली देखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ है उसमें मेटा प्रोग्राम, टुवर्ड्स आर अवे। मतलब क्या, कुछ लोग कोई भी बात आप उनसे कहो तो वो कहते हैं हाँ चलता हूँ यार, दे गो टुवर्ड्स इट। राइट, और अवे में अरे नहीं यार आज तो यार सुबह से हाँ। मूड ही नहीं बन रहा यार, Right, देखो यार, right. आज फिर टुवर्ड्स एंड अवे। ओके, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इनकी पहचान जो है वो यही है कि किसी बात में वो आदमी हाँ नहीं करेगा जल्दी, इसका मतलब ये नहीं जाएगा, लेकिन उसका अपना तरीका है जाने का, मैं बताऊंगा कैसे। राइट,
तो अब इसका एग्जांपल मैं आपको दूं कि इनके साथ डील कैसे, मान लीजिए एक बच्चा है, अगर वो आपको पता है भाई ये बड़ा टुवर्ड्स है, हाँ, तो जो लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है उसको इम्प्रेस करने के लिए, देखो बेटा ऐसा है, अच्छा पढ़ेगा, अच्छे कॉलेज में जाएगा, उसके बाद मैं अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज में तुझे भेजूंगा, मेरा दिल है तू आगे अमेरिका जाए, उसके बाद तू एक टॉप का प्रोफेशनल बनेगा, एक अच्छी से अच्छी लड़की से तेरी शादी होगी, लाइफ प्रेजेंट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास हर वो चीज़ होगी जो होनी चाहिए। Yes. Now what is this? Positive, 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 positive is likely to appeal him. और दूसरा बच्चा मान लीजिए अवे फ्रॉम है, हाँ, अब ये ही तरीका आप उसके साथ अपना सकते हैं। नहीं, तो थोड़ा सा आपको चेंज क्या करना, देख बेटा, अगर तू ढंग से ना पढ़ा तो अच्छे कॉलेज में नहीं जाएगा, Yes. अच्छे कॉलेज में नहीं जाएगा, आगे प्रोफेशनल में नहीं जा पाएगा, Right. सिलेक्ट ही नहीं होगा, yes, है कहीं ना कहीं पंप में हवा भर रहा होगा, पेट्रोल भर रहा होगा, या ऐसे कर रहा होगा, ठीक। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, ऐसा यू नो द सेम बॉय, हाँ। बट माई ओनली वर्ड्स हैव चेंज Yes, एंड माई yes. टोन एंड सेंस हैव चेंज, हाँ, बिकॉज approach. ये इससे उसको अपील होगी, पहले Yeah. वाले से वो नहीं होगी, right, टुवर्ड्स एंड अवे। ठीक है, तो ये सारे जो मैं 6 मेटा प्रॉम्प्ट बनाने वाला हूँ, ये सब हमारे में है, Yes. लेकिन इसमें भी डोमिनेंस है, एक तरफ टुवर्ड्स, आप समझो कि अगर ऐसा मैं करूँ, Yes. एक तरफ अवे, तो हम लोग कहीं ना कहीं बीच में रहते हैं, yes, यूजली एक डोमिनेंट होता है, एक फॉलो अप वाला right, होता है, right, तो टुवर्ड्स एंड अवे yeah, yeah, और आप देखें साहब कि कोई आदमी ये समझे कि भाई बहुत ज़्यादा टुवर्ड्स हूँ तो मुझे फ़ायदा नहीं, उनका क्या है, वो जो करते हैं वो करते ही रहते हैं। Yes. अगर वो शेयर मार्केट में ले रहा है, शेयर ही खरीदता रहेगा, मतलब सारे डाउन हो गए। right, तो आइडली अवे फ्रॉम का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ख़राब चीज़ है। और मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, जब मैं एम्स्टर्डम पहली बारी इनको सीखने गया, तो जो 6 में लगते हैं यार कि ये चीज़ें हों तो आप बहुत आगे चले जाएंगे, मेरे में एक भी नहीं था। मैंने कहा यार ये तो पैदा होना ही बेकार हो गया। उस वक्त तक उनको भी नहीं पता, आई एम टॉकिंग ऑफ 95, तब ये NLP नया आया था। तो व्हेन आई फर्दर स्टडीड द सब्जेक्ट, आई केम टू नो कि सक्सेस आप किसी भी तरीके से हासिल कर सकते हैं, ऊपर वाले ने Yes. लेवल फील्ड दिया है सब। right, right, बिल्कुल तो ठीक है। मतलब ये है हाँ। कि अब जैसे टुवर्ड्स और अवे का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी जो टुवर्ड्स है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट मान लीजिए किताब मार्केट में आती है जिसका चर्चा दुनिया में है, yeah, वो उसको पढ़ेगा कि भाई मैं इससे कुछ सीखना है मुझे, यू नो। और जो मेरे जैसा अवे फ्रॉम है फॉर एग्जांपल, वो भी उस किताब को खरीद लाएगा। right, यार ये लोग ये ना कहे इसने पढ़ी नहीं है, yes, मतलब मेरी हंसाई ना हो। right, देखिए दोनों का पर्पस अलग है, वो इसलिए पढ़ रहा है कि वो कुछ सीख सके, और ये इसलिए पढ़ रहा है कि कल को लोग क्या कहेंगे, यार तूने वो किताब ही नहीं पढ़ी। yes, अच्छा, ये आदमी हो सकता है ज़्यादा डेप्थ में जाए, क्योंकि कल को कोई सवाल पूछ लिया तो मुझे आना तो चाहिए, हाँ, अरे घड़ी में। सो दिस इज हाउ इट्स, आई मीन एट दैट टाइम आई फेल्ट कि यार ये सारे घटिया है, लेकिन बाद में आई रियलाइज कि नहीं, सक्सेस आप किसी भी ढंग किसी से, उससे पा सकते हैं, लेकिन इनके तरीके अलग हैं। right, तो अगर आपको लगता है कि ये आदमी टुवर्ड्स है, तो उससे उस टोन में, उस लैंग्वेज में बात करें, Yes. और अवे फ्रॉम है तो उससे, बिकॉज रिमेंबर पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देम। right, हमारे को शायद एक गलत क्लीशे बता दिया है कि डिफरेंसेस अट्रैक्ट, right, लेकिन वो सच्चाई नहीं है साहब। yes, देखिए डिफरेंस कहाँ करता है अट्रैक्ट, अगर आपकी ज़्यादा चीज़ें सिमिलर हैं और एक आध दो चीज़ आपकी डिफरेंट है, तो वो एक एक्साइटमेंट हो जाती है, Right. वो स्पाइस का काम करती है। लेकिन बाय एंड लार्ज यू शुड बी सिमिलर, अदरवाइज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल कम। Yes. देखिए इंग्लैंड और अमेरिका, ये दोनों आपस में हमेशा से दोस्त रहते हैं, क्यों? इनका खान पान, इनके कस्टम, इनके तौर तरीके एक जैसे। और अरब वालों में क्या है, अरब और जूस में कोई चीज़ सिमिलर नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे फाइट। और ब्लैक में और वाइट में क्या है, कोई चीज़ उनकी आपस में मैच नहीं करती, इसलिए दे फाइट। सो people like people who are like them is to be kept in mind. Right. And let us see further the other meta programs, how we can be like them. मैं अपने आप को चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस मोमेंट के लिए, उस टाइम के लिए जब मैं इनके सामने हूँ, Right. तो मैं इनकी तरह बिहेव करूँगा ताकि इनको लगे यार ये मेरे जैसा है। Yes. आप जब कहीं अब्रॉड जाते हो तो आप एक इंडियन को देख के क्या लगता है आपको, उससे आप हाथ मिलाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है यार ये मेरे जैसा है, इसके तौर तरीके, इसका वैल्यू सिस्टम, इसका कल्चर, ये मेरे जैसा होगा, एंड दैट्स व्हाई यू शेक हैंड।
So similarities bring people Yeah. together. The other meta program is internal and external. Now ये क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई बड़ा अच्छा मुकेश जी प्रोग्राम किया, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है? एक On तरीका, the basis of the response. हाँ, लोग क्या कह रहे हैं, रिकमेंडेशन Yeah. क्या आती हैं, उसके बेसिस पे आप समझोगे यार मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इतने लोगों से बड़ी तालियां वाह-वाह मिली, मिली वाह और- मिली, और उसके बाद लोगों ने लिख के भी दिया, Yeah. blah, blah. लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है वो ऐसी नहीं है। उसे कितनी भी तारीफ बाहर से मिल जाए, जब उसका अंदर से मन नहीं करता ना Right. कि यार मैंने ठीक किया, Right. आई मेड जस्टिस टू द सब्जेक्ट, Yeah. या मैंने किया है, तब तक वो खुश नहीं होता। अब इसका देखिए लाइफ में कैसे रूल चलता है। Right. माई सन यंगर वन हाँ। इज इंटरनल, ये एक्सटर्नल है। Okay. तो इनको तो तारीफ बाहर से चाहिए, Right. वो अपना आदमी, और इनका क्या है साहब कि ये फीडबैक लेते नहीं, ये मिनट में डिसीजन लेते हैं और कराते हैं। मैं अपनी वाइफ के साथ इसके साथ शॉपिंग मॉल में थे, और ये थोड़ी देर के लिए गायब हो गए दूसरे साहब, और थोड़ी देर में आए। मैं कहाँ गया, क्या लगा ये चश्मा लेना था, मैं कौन चलिए, क्या लगा ये 15,000 का मिला। अरे मैं कहा यार वो वाइफ जो है 50 रुपए के लिए है कि आधा घंटा हो गया, इनको पूछो ही नो इट। तो ये मैं कहा तू 15,000 रुपए का चश्मा खरीद के आ गया, क्योंकि दीज आर इंटरनल पीपल, Yeah. दे डोंट वेट फॉर फीडबैक, बिकॉज इनको अंदर से ही पता होता है कि ये ठीक है, एंड दे विल डू इट। Yes. सो इनके साथ जब बात करनी है ना, तो आप ये नहीं कह सकते यार कि वो कह रहा था, वो कह रहा था, दे विल नॉट अप्रिशिएट। यू नो इट, ओनली यू नो व्हाट इज Yes. करेक्ट, Yes. यू हैव टू डिसाइड। Right. यू नो, इस टाइप की लैंग्वेज अगर आप इनके साथ बोलते हैं, हाँ. तो ये आपको रिस्पॉन्ड पॉजिटिव करेंगे। Yes. और अगर आपने कहा यार मुकेश कह रहा था, हाँ. यार वो फलाना कह रहा था, और ढिमाका कह रहा था, तो इसमें तो बड़ा अच्छा है, Right. डजंट इफेक्ट। Right. दैट इज वाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो है जो रिस्पॉन्स डिजायर्ड आपको दिलाए। Yes. यू नो, दैट इज वाई दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, तो आप किसी के साथ भी रेपो बना सकते हैं, संबंध अपने बना सकते हैं। Yes. तीसरा है सर ये सेमनेस और डिफरेंस वाले लोग। कुछ लोग जो हैं उन्हें हर चीज़ सेम चाहिए, मैं भी इसी कैटेगरी का हूँ। मुझे रोज आना पोहा चाहिए, ब्रेकफास्ट में पोहा चाहिए, Okay. लेकिन जो डिफरेंस वाला, अरे कल तो पोहा खाया था यार, Yes. आज कैसे पोहा खाएंगे, आज उसको पूड़ी चाहिए, उसके बाद पराठा चाहिए, उसको ये Right. चाहिए। Right. लेकिन मैं बिकॉज सेमनेस का आदी हूँ, आई प्रीफर टू गो बाई अ रिलायबल सिक्योर, जो मुझे पता है मेरे डाइजेशन के लिए अच्छा है, मेरी ये सोच है, तो मैं सेमनेस पे जाता हूँ। Right. अगर मैं घर से मान लीजिए ऑफिस आऊँगा, तो एक ही रास्ते से आऊँगा, ठीक. आई विल नॉट एक्सप्लोर। वो जो हमारे साहबजादे हैं वो डिफरेंस है, वो हर बार नए पे जाता है। वो कई बार तो जहाँ 1 घंटे पहुँचना होता है 1.5 घंटे में पहुँच रहा है। रियलिटी आई एम टेलिंग यू। नहीं पापा मैंने सोचा ये नया रास्ता में, अब यार डे में गया, वो शादी में पहुँच रहा है, 1.5 घंटा हो गया, बट दैट इज हाउ ही इज। Yeah. So when you have to convince people, look at their meta program, ये किस तरह का है। तो सेमनेस वाले को आप ये कहें, अरे दिस इज द सेम, बेसिकली दिस इज द सेम। Right. अब क्या हुआ, अब देखिए जॉब में इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको मान लीजिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो यहाँ टिक के काम करे, तो वुड यू लाइक टू गो फॉर अ डिफरेंट मेटा प्रोग्राम पर्सन और सेमनेस? Definitely not. सेम गाय, Yeah. ये सेमनेस वाला है, रोज आएगा, उसको Right, लगेगा right. अपना ठीक है, वो आता रहेगा। डिफरेंस वाला ले लोगे, रोज का कूदता रहेगा इधर उधर। Yes. सो दैट इज हाउ दीज थिंग्स वर्क इन योर डे टू डे लाइफ, Right. इन योर करियर। Yeah. ठीक है। एंड अनदर थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज देयर आर पीपल हु आर ग्लोबल एंड स्पेसिफिक। अब ग्लोबल एंड स्पेसिफिक मतलब कुछ लोग जो हैं वो ओवरव्यू पसंद करते हैं, ग्लोबल, जनरली स्पीकिंग, बेसिकली वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। और लाइक आई स्टार्टेड द प्रोग्राम विद एन ओवरव्यू, लेकिन जो दूसरा है स्पेसिफिक वाला, वो डिटेल में जाएगा। ठीक. He will begin from detail to overview, and a person who is global will start with overview and then he will go into the nitty-gritty like I am doing. Right. पहले overview दिया, now we are going into the details. But if a guy who was a different meta program guy, he would start the other way. Exactly. और इनके साथ बातचीत का भी तरीका यही है। एक गोलकीपर थे साहब, बड़ा अच्छा गोलकीपर था,
लेकिन वो था डिफरेंस। वो गोल में उसको खड़ा कर दिया। वो कहता है यार मैं इतने साल से एक ही जगह पे खड़ा हूँ, मैं नहीं खड़ा होता। ठीक। एंड दे हैड अ प्रॉब्लम बिकॉज देयर वाज नो बेटर देन हिम। तो फिर उसका कोच हु वाज अवेयर ऑफ दिस, ही सेड देखिए इट्स सो एंड सो, इट इज नॉट द सेम। एवरी टाइम द ऑडियंस इज डिफरेंट, यस, the ground is different, you know, the size of this is different, that is different. It's just not the same at all. You know, specifically when you look at this, you will find there's a lot of difference between what you played last. right. Then he was able to convince him, you continue with this. So this is how you can gain rapport and do your job well. As I said, this NLP will help you in making a difference in the business, Yeah. in your day-to-day life, in building relations, and more importantly, to remain happy. You know, when you know that I can build relation with anybody and get my job done, are you not happy? You are Yes, happy. yes. So अगला जो मेटा प्रोग्राम है सर, वो है necessity and possibility. Another very interesting thing. अब necessity वाले लोग, I also, मैं अपना एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि आपको और आसान हो जाए। नेसेसिटी वाले जो लोग हैं वो ये देखते हैं कि मान लीजिए मुझे एक कार खरीदनी है, लाइक आई डिड रिसेंटली, यू नो इट। तो ये क्या करेंगे यार, कौन सी गाड़ी बड़ी रिलायबल है और सिक्योर है, कितने की मिलती है, इतने की मिलती है, हाँ मेरा बजट भी इतना है, पुरानी जगह से वो जाएंगे खरीद के ले आएंगे। बिकॉज दे फेल्ट आई वांटेड ए कार, इट्स ए रिलायबल कार, सूट्स माय बजट, दैट्स इट। लेकिन जो पॉसिबिलिटी वाले हैं, हमारे साहबजादे हैं, उन्होंने भी गाड़ी ली है, 10 जगह घुमा घुमा के टांगे तोड़वा दिए सामने। कितने तो मॉडल देखे, ऐसा कर लूँ, ये ज़्यादा है तो क्या मैं EMI बनवा लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। He went for all the possibilities and then selected a car. Yes. And I would have purchased 10 cars by that time because I go by necessity. We really come across such type of different Absolutely, absolutely you come across. But the important thing is having known them, how to deal with Right, them. right. How to deal with them. Right. So if I have to convince a possibility guy, I have to use those words, you know, कि भाई ठीक है यार देख लो, लेकिन अल्टीमेटली ये देख लेना कि गाड़ी रिलायबल हो, है, कम से कम बजट में आ जाए, बहुत ज़्यादा EMI ये ना हो, ऐसा ना हो कल को गाड़ी ना, थोड़ा सा उसको समझा के चलो चलते हैं, देखते हैं, पर देखिए इस बात का ख्याल कर लेना। मतलब कंसेप्चुअली चाहे आप उनकी बात से रजामंदी जाहिर करें, लेकिन प्रैक्टिकली फिर आप उनको उसी पॉइंट पे ले आएं जहां पर उनके प्रैक्टिकल बेनिफिशियल होने जा रहे हैं। एटलीस्ट एज ए फादर यू कैन साउंड, लेकिन वो ऑन हिज ओन क्या करेगा, वो पॉसिबिलिटी में जाएगा साहब। मतलब आई रिसेंटली परचेज्ड हाउस, उसमें उनकी रजामंदी थी, आए, मैंने पूछा ठीक है, अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, सोसाइटी में देख लेते हैं, वहाँ तो स्विमिंग पूल था, पूछो इससे, स्विमिंग पूल था, रेस्टोरेंट था, हैं, इतने अच्छे लोग बाग थे आसपास, ये क्या मकान ले लिया, आपने देखा ही नहीं, आप बिल्कुल देखते ही नहीं, आप तो दूसरा मकान ले लिया आपने। दिस इज हाउ दे बिहेव, बिकॉज ही इज अ गाय हु इज अ पॉसिबिलिटी गाय। और मेरा नेचर ये है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, 4 कमरे का चाहिए, ये अच्छी जगह ये है, मेरे बजट में सूट करता है, टेक इट, बट दैट्स मी नॉट हिम। अच्छा, नाउ अनदर थिंग इज we have not to fight on it, we have to appreciate the difference. Right. He is not bad, he is different, Right. and I have to appreciate that difference and deal with him accordingly. ठीक है सर। एक और है बेटा प्रोग्राम, सेल्फ एंड अदर्स। Okay. अब ये सेल्फ में आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो हर चीज़ में ये देखते हैं व्हाट इज देयर फॉर मी इन इट, Yes. मेरे लिए क्या है इसमें। Yeah. और दूसरे लोग वो हैं जो हमेशा पहले ये देखते हैं यार चलो ठीक है उसका क्या होगा, Right. उसको भी कुछ मिलेगा कि नहीं। टीममेट जो होते, खिलाड़ी जो होते हैं ना, खिलाड़ी वाले जो है टीम प्लेयर, वो हमेशा ये सोचते हैं यार उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। और दूसरी श्रृंखला ये है, हेल विद इट यार, व्हाट इज देयर फॉर मी, मी माई माइंड वाले लोग हैं ये, है ना। और वो जो है वो वी वाले लोग हैं, वी अवर, यार सबका होना चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ मैं ही हूँ, औरों का भी होना चाहिए। ये मैं वालों की कैटेगरी में
हरियाणा का एक एग्जाम्पल कोट किया जाता है कि दुनिया में बड़े बड़े रानी खां हैं, देखा जाए तो मेरा और आपका मुकाबला नहीं है, और देखा जाए फर्दर तो आप ही क्या हैं। हाँ। जो कुछ हूँ मैं ही मैं हूँ। ये नेचर है साहब, और ये मिल जाएंगे आपको, आप उनको दोष नहीं दे सकते। एग्जैक्टली दोष नहीं दे सकते, लेकिन आप जब पहचान जाते हो उस चीज को, डे टू डे लाइफ में नजर आ आपको जाता मिल जाएंगे है। कि भाई अब देखिए साहब, इनके साथ डील करना है तो इनको वहां रखिए जहां बस सेल्फ ही सेल्फ हो। मान लीजिए आपके पास कोई सुपरवाइजर की या जो ये क्वालिटी कंट्रोल वाले होते हैं, है ना, तो वहाँ अगर आपको रखना है तो ऐसे लोगों को रख दीजिए, वो अपना अपनी प्रमोशन वो देखेगा। अदर्स वाला कॉलम उसका जरा ना हो, इधर उधर ध्यान। और लेकिन अगर आपको ऐसे लोग चाहिए जो सर्विस इंडस्ट्री में हैं, एक एयरलाइन में 95% कंप्लेंट्स थी, तो व्हेन दे एनालाइज कि ये 95% कंप्लेंट्स क्यों हैं, इनको ये पता लगा कि 5% लोग जो हैं वो टोटली सेल्फ है, और सर्विस इंडस्ट्री इज governed by others' interests. And when they replace these 5 people from self to others, they could solve 80% of their problem. लेकिन इनको ढूंढेंगे कैसे? उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरव्यू के लिए लोग बुलाए और उनसे एयरलाइन का एक मुश्किल का सवाल पूछा जिसका आंसर इम्पोर्टेंट नहीं था। उसको ये देखना था कि हम ये जो 8-10 लोग बैठे हैं, ये क्या सबकी तरफ देखता है, या सिर्फ एक तरफ देख के ही बोलता है, you know. So they selected only those people who were looking at everyone, because that is the others meta program. Self आदमी तो सिर्फ चीज को देखता रहेगा और वो बोलता रहेगा, and that is how they could solve 80% of their problems. So these are the 6 meta programs, which are actually the keys to reach out any person. And you will be able to build relations provided you understand about these, and more importantly, bring them into your practice. Everything may not come overnight. You know, 3 things we have discussed to build rapport: mirroring and matching. You know, here again I repeat, don't be aping him, you know, a mimicry, no. Just very softly, nicely try to match him in the body language, that is the gesture and the expressions, and also the tone and the voice as the other person is speaking. And then look for his sensory representation, whether he is the visual guy, he is auditory or kinesthetic. And you have not to change yourself, but the time you are with him, try to be in his map of the world. In NLP we call it as a map of the world. तो अपने मैप ऑफ द वर्ल्ड से उसके मैप ऑफ द वर्ल्ड में जाके बात करें तो आपको लगेगा यार ये तो सारी दुनिया मेरे दोस्त ही दोस्त है। और क्या होगा कि तीसरी चीज़, जब ये मेटा प्रोग्राम्स भी आप अच्छी तरह जान लेंगे और इसको अपनी बातचीत में लाएंगे और दूसरे के साथ उसी तरह से बिहेव करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका अंदाज़े बयां बदल जाएगा। और कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, it's not what you say, it's how you say. It's not what you say, it's how you say. और ये सारा प्रोग्राम जब आप इसको समझ लेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये जो how you say है ये आपका बदल जाएगा. And with this you will see a lot of personal relations coming up. Success you will find is much more easier. And as I said, you will feel very happy about it. और मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगा, गालिब साहब का एक बड़ा सुंदर शेर है कि और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बिना हो। तो इसके बाद अगर अंदाज़े बिना आपका चेंज हो गया तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ सुखद चेंज आएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, आपकी इन बातों ने जिन्होंने दिमाग को रोशन कर दिया इस फील्ड के लिए, मैं आपके अंतिम एग्जाम्पल पर एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि तेरा अंदाज है जो चले आते हैं तेरे मैखाने में, तेरा अंदाज ही है जो चले आते हैं तेरे मैखाने में, वरना मैं
मैं की कमी नहीं है, मेरे भी मैं खा ले। दैट इज कि अंदाज़े बयां अगर अच्छा है, अगर आप इस भाव से इनवाइट कर रहे हैं कि दूसरा आदमी खिंचा चला आएगा, तो उसके ऊपर एक लास्ट लॉन्गिंग इम्प्रेशन रहता है। Absolutely. अदरवाइज तो हर आदमी अपनी अपनी जगह संपन्न है। एक और मुझे मेरा ही अशार एक याद आता है अच्छा। कि घर पिलाना ही है तो गिनाता क्यों? घर पिलाना ही है तो गिनाता क्यों है? ये मैं भी तेरी और मैं भी तेरा, महफिल में तमाशा दिखाता क्यों? तो कमिंग टू योर पॉइंट शशि जी, मैं ये समझता हूँ ये बड़ी छोटी छोटी साधारण सी बातें हैं, लेकिन दे रियली मैटर सो मच इन लाइफ कि दैट मेक्स ए डिफरेंस। इतना डिफरेंस पैदा करती हैं कि किसी एक आदमी के प्रति हम खिंचे चले जाते हैं और एक आदमी के प्रति उसको देख के हम मुंह मोड़ के भागना चाहते हैं। तो निर्भर करता है कि कोई आदमी इनको लाइफ में कितनी सजगता से, अवेयरनेस से प्रैक्टिस करता। तो श्रोताओं, तहे दिल से मैं मिस्टर शशि आनंद का आभार व्यक्त करता हूँ। देर से ही, लेकिन आपने आज आके हमारे इस वक्त को बहुत ही वैल्यूएबल सार्थक कर दिया। हम तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। Great to be with you once again. Thank you very much.